Good morning, students. Welcome back. I know that after many days I am making this video, so sorry for delay. Okay. Now I will try to continue with the different topics, and through comments I have got some comments that I should make some videos on meaning and objectives and terminology of accounting. And this video is basically for class 9, and I will make the video for class 10th also. Okay, so if you have any doubts and any queries, you can ask me in this comment box. Okay, and try to like and subscribe my channel. I will try to make more and more videos. Okay, and I will try my best, and I will explain the topics in such a way that you can understand. Okay, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, इन सारे टॉपिक्स को, जिससे आपको क्या इन टॉपिक्स को समझना आसान हो जाए. So let's start. Now in this chapter, this is basically, and I am going through the syllabus according to the syllabus. Okay, updated syllabus which will according to the ICSE board. Okay, so जो updated syllabus है उसमें chapter number 19 in commercial studies, meaning, objectives and terminology of accounting. What are the things we will understand and we will learn? क्या क्या चीज़ें जिसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे, right? The first one is, first we will understand the meaning of accounting. Accounting है क्या? What is the meaning of accounting? ठीक है. Next is basically if we understand, हम समझें तो ये जो एक basic concept है, right? एक base है. ओके, आगे आप क्योंकि जब तक कॉमर्स के टच में रहोगे तो ये आपके लिए बेस है. अगर इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर प्रॉपरली, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू do the accounting equations and all other numericals, because all the numericals is based on this chapter. This is the base. एक तरह से this is the ABCD for accounting. Okay, so it is very important to understand this chapter. So meaning of accounting, then we will understand what is bookkeeping. ये bookkeeping क्या होता है? Okay, then what is the difference? What are the differences between accounting and bookkeeping? Bookkeeping और accounting में differences क्या क्या है? Okay, then what are the objectives of accounting? Accounting के objectives क्या है? Why it is important? Okay, then advantages and limitations of accounting. What are the advantages and limitations of accounting? Okay, क्या advantages हैं इसके? Then we will understand the meaning and classification of accounts. There are different types of account which is maintained by any business organization, any entrepreneur. So we will understand about them also. Then what is accounting cycle? Accounting cycle क्या होती है? Okay. Then rules of debit and credit is very important. If we have understood the rules of debit and credit, what should be debited and what should be credited, then it will be easy for us to do the numericals. Okay. Then basic accounting terminologies. कुछ accounting terminologies हैं which is used in accounts. So we will understand them. And branches of accounting. क्या accounting के कौन कौन से different branches? इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस I will just go through it कौन कौन से, so that it will be clear to you. एक समझ में आ जाए कि कौन कौन से different branches है accounting के. Okay, so we will continue with this chapter. Let's understand that what is accounting. Accounting है क्या, right? So in every society, in any economy, people exchange goods and services. Okay, basically goods and services for money. कोई भी चीज़, कोई भी बिजनेसमैन कोई गुड्स का प्रोडक्शन क्यों कर रहा है, कोई सर्विसेज क्यों प्रोवाइड करता है? फॉर द सेक ऑफ मनी, टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, तो कोई भी बिजनेस अपने प्रॉफिट बनाने के लिए वो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, कुछ अर्निंग करने के लिए, राइट? सो उसको क्या है, इन रिटर्न दे वांट मनी चाहिए उन्हें. ठीक है, सो बेसिकली the exchange of goods and services between two persons, okay, and which includes money, that is known as your transaction. उसी को बोलते हैं transaction. जब दो लोग आपस में साथ आते हैं, okay, and the one person, for example, X is a person who is doing the business and Y is the customers. Now this customer want any service or any goods, कोई गुड चाहिए इसको. ठीक है, now he will pay money to this X and X will receive money, and in return he will provide the goods or services to Y. Right? Now here these two persons are coming together and they are dealing with goods and services and with money. Right? So this is your transaction. इसको बोलते हैं transactions. Right?
ये होता है ट्रांजैक्शन। क्योंकि अभी जब हम अकाउंटिंग्स करेंगे या अकाउंटिंग्स चैप्टर करेंगे, कई बार ये टर्म आएगा ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन। सो व्हाट इज ट्रांजैक्शन? इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ। मीन्स जब भी किसी भी डीलिंग में जब मनी इंक्लूड होती है, राइट, सो दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन। बेसिकली ट्रांजैक्शन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेक ऑफ मनी, दैट इज योर ट्रांजैक्शन। हम बैंक में जाते हैं, हम कोई चीज़ देते हैं, पैसे देते हैं या सो देयर वी आर डूइंग द ट्रांजैक्शन। जिस भी डीलिंग में या किसी भी चीज़ में, किसी भी ऐसे एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व है, ओके, सो दैट इज योर ट्रांजैक्शन, उसको ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग? ये तो हो गया ट्रांजैक्शन, ओके, एंड अ सिस्टमैटिक एंड रिटन रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इज नेसेसरी, राइट? It is very important to record all these transactions, इन सारे ट्रांजेक्शन्स को, क्योंकि ये मनी रिलेटेड है और मनी रिलेटेड चीज़ों को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, राइट? अ सिस्टमैटिक एंड रिटन रिकॉर्ड ऑफ ऑल दीज ट्रांजेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एन इंडिविजुअल कैन नॉट रिमेंबर ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी बिजनेसमैन XYZ जो भी है, या मैं ही हूँ, और लास्ट मंथ में मैंने क्या डीलिंग की, किसको कितना परचेज किया, किससे कितना बाय किया, अगर मेरी डेली इन सब चीज़ों से डीलिंग हो रही है तो क्या मैं इन सब चीज़ों को याद कर पाऊँगी? नॉट एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को याद रखूँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड इन अ रिटन फॉर्म। इन रिटन फॉर्म में इन चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाए। क्लियर? सो दैट्स वाई, ओके। नाउ अकाउंटिंग अब आती है, क्लियर हो गया? तो इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग मीन्स कीपिंग एन अकाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एंड स्पेंड। अकाउंटिंग क्या, अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझें, अकाउंटिंग क्या है कि कितना पैसा हमने रिसीव किया और कितना पैसा हमने स्पेंड किया, दैट इज योर अकाउंटिंग। उसी को अकाउंटिंग कहते हैं। उन सब चीज़ों को, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना इज अकाउंटिंग। क्योंकि बिजनेस किससे डील कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। सो कितना उसने किसको कितना बेचा, कितना रिसीव किया, दैट इज टू बी रिकॉर्डेड। वो रिकॉर्ड होना चाहिए, ओके। सो दैट इज योर अकाउंटिंग, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू AICPA, that is your American Institute of Certified Public Accountant, they says that accounting is the art, it is an art of recording। अब आर्ट क्यों है? क्योंकि ये कला है, ये किसी भी चीज़ को एक सिस्टमैटिक तरीके से कहीं रिकॉर्ड करना, इट इज़ एन आर्ट। लाइफ को जीना भी इट इज़ एन आर्ट, दैट्स व्हाई इट इज लाइक आर्ट ऑफ लिविंग, राइट? किसी भी चीज़ को जीते सब है, लाइफ सर्वाइव सब करते हैं, बट इसको एक तरीके से, एक ऑब्जेक्टिव के साथ सर्वाइव करना, दैट इज समथिंग एल्स, राइट? करते सब वही काम है, लेकिन कोई लोग बहुत सही तरीके से करते हैं, सिस्टमैटिक वे में करते हैं, विच कैन इन्फ्लुएंस अदर्स ऑल्सो। सो दैट इज एन आर्ट। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अकाउंटिंग क्या है? इट इज एन आर्ट, एक कला है ऑफ रिकॉर्डिंग, चीज़ों को रिकॉर्ड करना, जो भी चीज़ें, जो भी डीलिंग्स हो रही है उनको रिकॉर्ड करना, फिर देन क्लासीफाई करना। क्लासीफाई यानी अभी हम आगे समझेंगे, इसके जब फीचर्स समझेंगे, क्लासीफाई डिफरेंट अकाउंट्स में उनको डिवाइड करना, ठीक है? कौन सा कैश बुक में जाएगा, कौन सा परचेज बुक में जाएगा, राइट? सो क्लासीफाई देन, क्लासिफिकेशन करना, अलग अलग करना, समराइज देन, एंड आफ्टर दैट समराइज करते हैं, उनको एक अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, राइट? सो समराइज करना, समराइज ऑल दिस, फिर देन वी मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। तो समराइज किया हमने। हम क्या करते हैं, जब हम आंसर्स लिखते हैं तो फर्स्ट वी राइट द इंट्रोडक्शन, देन मेन, एंड देन वी समराइज द आंसर्स। क्या है कि अगर उस समरी को भी कोई देख ले, कई बार आपने लिटरेचर्स में, किस बुक्स में देखा होगा कि लास्ट में समरी दिया होता है, बुक्स की समरी दी होती है। क्या उस समरी को पढ़ने से वी कैन एनालाइज, वी कैन एसेस कि किस तरह की बुक है, राइट? सो इन द सेम वे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करते हैं, एक समरी बनाते हैं चीज़ों की, ठीक है? देन समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। व्हेन वी आर डूइंग अकाउंटिंग, ऑल द थिंग्स विल बी रिकॉर्डेड विच इज़ इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करना, उन्हीं चीज़ का क्लासिफिकेशन करना, उन्हीं चीज़ को समराइज करना विच इज़ इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी से रिलेटेड हो, मनी से कंसर्न करते हैं, राइट? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट
ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, यानी सिर्फ उन्हीं चीजों को हमें रिकॉर्ड करना विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस, विच इज रिलेटेड टू मनी, जो मनी से रिलेटेड हो, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर, एंड आफ्टर दैट we analyze, we interpreted that what is the result, is the business organization is in profit or it is in a loss, how much profit and how much loss, right? So this is your accounting. What is accounting? Accounting is an art of recording. पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को कहीं पे, either in नोटबुक और इन नाउ एवरीथिंग इज डिजिटलाइज, तो सारी चीज़ें लगभग डिजिटलाइज हो रही है, तो इन अ कंप्यूटर, ओके, देन वी क्लासीफाई देम, रिकॉर्ड करने के बाद हम क्लासीफाई करते हैं, राइट, कि कौन सी चीज़ कहाँ जानी चाहिए, ओके, सो क्लासिफिकेशन and then summarizing. After that we summarize, we make different trading accounts, profit and loss accounts to analyze or to assess the profit, net profit and net loss of the organization, कितने assets बचे हैं, कितने liabilities हैं, all these things, okay. So and all these transactions will be only all those transactions will be recorded which deals with money, okay. So this is all about accounting. Accounting क्या है, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना ट्रांजैक्शंस को विच इज इन अ मॉनेटरी टर्म्स में, ओके, एंड आफ्टर दैट टू डिक्लेयर और टू असेस द रिजल्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर. सो दिस इज योर अकाउंटिंग, ये है अकाउंटिंग. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं? The features of accounting, okay. The first one is basically all the features are in the definition of accounting. जो हमने definition समझी accounting की, सारे features वहीं से लिए गए हैं, right. First is we know that accounting is an art, right. So art as well as science. Accounting is art as well as science. कैसे art क्यों कहते हैं? Because it is an art, किसी वह कला है, right. So the records are designed to suit the particular requirements. Means हर अकाउंटिंग में चीज़ों को इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है जो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स को सूट करे, ओके. सो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज एन आर्ट, ओके. नेक्स्ट इज साइंस. मतलब जैसे इसमें आर्ट्स में क्या है कि जो जैसे कैश से रिलेटेड चीज़ उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से सही जगह पे रिकॉर्ड किया जाएगा, जो जिस चीज़ को सूट करेगा ट्रांजैक्शन जहाँ पे सूट करे दैट विल बी रिकॉर्डेड देयर, ओके. साइंस क्यों है? Because work on principles and assumption. Because as we know that science is a systematic body of knowledge. Okay. So science में क्या होता है, हम चीज़ों के principles पे बेस काम करते हैं, एक systematic body है knowledge की, right? So ये भी क्या है, हमारे जो accounting है इसके भी कुछ basic principles हैं जिन पे ये काम करता है, basic principles पे. Okay. Second features, financial transaction. Only those transactions will be recorded in the accounts which are related to money, which are related to money. So it records only those transactions which can be expressed in terms of money. सिर्फ उन transactions को रिकॉर्ड किया जाएगा जो मनी में एक्सप्रेस किए जा सकें. Rather than that, nothing will be recorded in accounting. जैसे example that is given in your book that अगर दो employees के बीच फाइट हुई है, right? So that will not be recorded in the book, okay? So in accounting only those things, those transactions will be recorded which can be expressed in terms of money. Clear? Next, recording. अब आता है recording business transaction in a systematic manner. हमने पढ़ा कि it is the art of classifying recording, ठीक है. तो रिकॉर्ड करते हैं हम सारे ट्रांजेक्शन्स जो भी डीलिंग होती है उनको रिकॉर्ड करते हैं, ओके. रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता है, हम डिफरेंट टाइप्स के बुक्स भी मेंटेन करते हैं, दैट इज नोन एज सब्सिडरी बुक्स. सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, बहुत अलग अलग डिफरेंट बुक्स होती है विच इज मेंटेन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. कैन बी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, कितना जो कैश से रिलेटेड चीज़ें होंगी दैट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक. जो परचेज कितना चीज़ें परचेज की गई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दैट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक्स. एंड सेल्स बुक, कितनी सेलिंग हुई, सो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. सो ऑल दीज आर द सब्सिडरी बुक्स. सब्सिडरी यानी अलग से मेंटेन की गई डिफरेंट बुक्स होती हैं, ओके. सो ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड. दिस इज ऑल्सो द फीचर ऑफ अकाउंटिंग. कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं है जो मनी से रिलेटेड है, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड. ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू मनी will be recorded in accounting.
नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग यानी चीज़ों को ग्रुप करना, अलग अलग करना, राइट। जैसे इन क्लास में क्या, जैसे हम क्लासिफाई कर दिए गर्ल्स बॉयज़, ओके, जो एक हाइट के हैं दे विल बी कम टुगेदर, जो एक हाइट के हैं दे विल कम टुगेदर, राइट। हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्लासिफाइंग, 9th class will go there, 10th class will go there. Here classification, we are grouping, right? So in the same way in accounting, it is the process of grouping the entries or transaction of one nature or one place. यानी कि जो ट्रांजेक्शन, सिमिलर ट्रांजेक्शन है, जो एक जैसे ट्रांजेक्शन है, उनको एक जगह रिकॉर्ड करना इज योर क्लासिफाइंग। एंड फॉर दैट वी मेंटेन द लेजर बुक्स। लेजर होता है जिसमें क्या होता है, अभी हम आगे देखेंगे कि लेजर जो एक जैसी चीज़ें होते हैं, दे आर रिकॉर्डेड इन वन प्लेस, एक जगह। तो ये क्या होती है, इसमें होती है बेसिकली लेजर। नेक्स्ट इज समराइजिंग। समराइज यानी कंक्लूड करना। मैंने पहले भी बताया है कि क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर यूजफुल टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। यानी अगर समराइजिंग उस अकाउंट को, उस फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को अगर कोई देख ले, चेक कर ले, तो इट कैन बी ईजी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन टू एसेस कि क्या पोजीशन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो समरी, ये एक तरह से समरी रिप्रेजेंट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, कि क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में काम कर रहा है। ओके, सो दैट इज द समरी ऑफ दिस अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट इज अ समरी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड एट लास्ट आफ्टर समराइजिंग वी कैन चेक and we can judge the financial position of the business organization। और लास्ट में हम चेक कर सकते हैं कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कैसी फाइनेंशियल पोजीशन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अकाउंटिंग। ये हमने पढ़ा अकाउंटिंग के बारे में, राइट, द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, what is accounting, okay। in the next video I will continue with bookkeeping। bookkeeping क्या है, differences between bookkeeping, okay। now I hope that you have understood the meaning, the concept of accounting and the features of accounting, okay। thank you so much for watching this video। if you like this video, please like and subscribe my channel। thank you so much।